अखंड 2 की एडवांस बुकिंग देने से पहले शायद मुझे लगता है कि आप लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन आपको जाननी ज़रूरी है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट permits premieres on 4 December. Rupees 600 ticket price, 10-day hike approved for NBK. एंड बाय द वे मैं पहले ही बोल दूं कि यस प्रीमियर्स है अखंड 2 के, उसके भी अपडेट्स मैं आपको दे दूंगा। आई थिंक इवन इन मुंबई हिंदी डब प्रीमियर है या नहीं देखना पड़ेगा, मैं आपको बता दूंगा। अगर तेलुगु में भी होगा तो भी काम बन जाएगा भाई साहब, तो मैं आपको पूरा डिटेल दे दूंगा उसका है या नहीं। और इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ अगर आप देख सकते हो, तेलुगु में भी आपको समझ आता है तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा इवन इन मुंबई प्रीमियर्स है या नहीं। पहले हम बात कर लेते हैं इसको लेके कि क्या है क्या नहीं। NBK's roar is said to heard a day early. The Andhra Pradesh government has formally approved special premiere shows and ticket hikes for massive devotional action entertain arena, major development that has electrified the trade and fans alike. The Andhra Pradesh government has officially granted permissions for special premiere shows for NBK's high anticipated Akhanda 2 Tandavam. Directed by mass specialist Boyapati Srinu, the film is set to storm theatres worldwide on 5th December, and the madness will begin a day early in Andhra Pradesh. According to latest official order, the government has greenlit special premiere show to screen on the night of 4th December. This strategic move allows the film to kickstart the box office rampage a day before the official Friday release. For this exclusive premiere screening, the administration has capped the ticket price at premium rate of 600 inclusive of GST. In addition to premieres, the government has positively responded to producers' request for a ticket price hike during a regular theatrical run to help recover the high budget involved for period of 10 days starting from the release date. Single screens have been permitted increase rates by 75 rupees, and multiplex have been granted a hike of 100 rupees per ticket. मतलब बढ़ा दिए गए हैं 100 rupees. Akhanda 2 produced by 14 Reels Plus carries the weight of massive expectation. The blockbuster film, it is the sequel of 2021's blockbuster Akhanda, which celebrated a 100-day run and became defining film for NBK. The Balkrishna, the combination of Balkrishna and Boyapati Srinu, a hat-trick hit duo, coupled with Thaman's background score, has generated unprecedented pre-release business. The film also features Samyukta, a female lead, Adi, in crucial role. With the government support and massive release plan, Akhanda 2 is poised to register career best openings for NBK. दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है, जी गवर्नमेंट ने भी उनको बहुत हेल्प की। और यही मैं बार बार बोलते आया हूँ, ये जो बॉलीवुड के कुछ अनपढ़ लोग बोलते ना, अरे नहीं नहीं भाई नेट कलेक्शन होना चाहिए तब जाके हिट होता है, भाई रीजनल फिल्मों के लिए नहीं होता है वो। मैं बार बार वही बोलते आया हूँ, चाहे गुजराती फिल्म हो, बंगाली हो, तेलुगु हो, तमिल हो, मलयालम हो, कन्नड़ा हो, ओके, ओडिया फिल्म हो, इवन मराठी फिल्म इंडस्ट्री हो, भाई वर्ल्ड वाइड पे ही कलेक्शन इनका हिट या फ्लॉप वाला जो वर्डिक्ट है इनको मिल जाता है। इसीलिए इनके फिल्मों के आप जो भी आपके बजट के हिसाब से जब ये वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लेती है, इनको ब्लॉकबस्टर भी वर्डिक्ट मिल जाते हैं। उसके पीछे रहता है एंटरटेनमेंट टैक्स, जो बॉलीवुड वालों का अलग होता है, और इनको तो टैक्स ही नहीं पड़ता है, शायद ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है ये सब, लेकिन बॉलीवुड का वैसा नहीं होता है। सिंपल सा ये बात है, जो कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आता है वो एंटरटेनमेंट टैक्स वाला लॉजिक। खैर जो भी है, बट अखंड 2 को दोस्तों मैसिव बजट, कुछ लोग भाई बोल रहे हैं 100 करोड़ भाई, लेकिन मैंने तो सुना है एक आर्टिकल में 200 करोड़ ऑफिशियल बजट इसका सुना है। ओके, मैसिव बजट है और 10 डेज का टाइम दिया है इन लोगों ने। इवन आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने भी ज़बरदस्त हेल्प की है। देखो टारगेट सिंपल है, अगर 200 करोड़ बजट है तो वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ करेगी तो हिट हो जाएगा, सिंपल सा टारगेट है। बट आई थिंक डिस्ट्रीब्यूटर शेयर होगा 100 करोड़ का मे बी, और उस उतना भी हो जाएगा वो, मतलब उसमें 200 करोड़ अगर वर्ल्ड वाइड कर लेती तो शायद वो उतना भी हो ही जाएगा। तो इस टाइप का है, और हेल्प भी की इन लोगों ने, गवर्नमेंट ने इस फिल्म को। अभी एडवांस बुकिंग की बात कर रहा था, करे तो भाई वर्ल्ड वाइड का रफ डाटा देखने को मिला है। वो भाई सब मिला के 3-3.5 करोड़ से ऊपर का ही देखने को मिल रहा है, लेकिन वो रफ डाटा है, ऑफिशियल नहीं है, क्योंकि मतलब कंफर्मेशन नहीं बोल सकते इसका। और जो भारत का जो
कम से कम तेलुगु में जो कल से एडवांस बुकिंग इसका 4 तारीख को सुबह 6 बजे के बाद कुछ जगह पे इसके एडवांस बुकिंग फुल फ्लेज ओपन होने वाली है, अभी तक हुई नहीं है। देयर आर सम थिएटर्स जिन्होंने इसकी एडवांस बुकिंग शुरू की है, शायद तेलुगु में। ओके, तो ये है भाई इसका पूरा लोखा जोखा। और ये फिल्म को देखो दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि टिकट रेट्स वगैरह भी हाई किए गए हैं, हेल्प हो गई है भाई थोड़ी बहुत फिल्म की। एंड जिस तरीके से देखो भाई, एक बात है, तेलुगु में ऐसा भी होता है भाई कि पहले 2 दिन फिल्में अच्छी चलती है या फिर पहले एक दिन, बाद में रिव्यूज़ पे डिपेंड करता है। अगर रिव्यूज़ अच्छे आए तो डेफिनेटली बहुत धमाका करेगी, और रिव्यूज़ अच्छे नहीं आए तो दूसरे दिन भी गिर सकती है फिल्म। तो भाई ये फिल्म सब रिव्यूज़ पे डिपेंड ज़्यादा करेगी, ऐसा है। इसका CBFC रिव्यू आया है, थोड़ी देर बाद अगर मुझे वक्त मिलेगा तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगा। तो अभी जो लोग बोल रहे कि क्या ये वर्ल्ड वाइड कितना करेगी ओपनिंग, मैं देखो इसके कुछ ट्रेड्स तो बता रहे कि 25-30 करोड़, और एक तेलुगु ट्रेड बता रहा है 50 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ओपनिंग मार सकती है। और एक तेलुगु ट्रेड तो भाई कुछ शॉकिंग कर रहा है, बोल रहा है 65-70 करोड़। अब देखो भाई, अंदाज़ा नहीं आ पा रहा है एग्जैक्टली क्या है। मेरा एक मानना है कि जो मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स जो है वो 25 से 40 करोड़ का ट्रेड वर्ल्ड वाइड दिखा रहे इसका। हो सकता है 50 करोड़ भी जाए, बट अब देखो भाई, जो मेजोरिटी वो उसको मैं ट्रैक करूँगा ना, जो मेजोरिटी वाले जो क्रिटिक्स है वो क्या कह रहे हैं उसके हिसाब से ही मैं इसका ये कहूँगा। इनका ये कहना है कि पहले दिन NBK के फ़ैन आग बंद करके जाएंगे, फिल्म को धमाका करेगी ये, प्रीमियर्स भी ज़बरदस्त जाएंगे, 50 करोड़ प्लस भी वर्ल्ड वाइड हो सकता है, ऐसा इनका कहना है। बट सेकेंड डे से इसका असली टेस्ट होगा, ऐसा इवन इनफैक्ट पहला दिन यानी कि 5 तारीख से शाम तक तो सब रिव्यूज़ ऑफिशियली आ चुके होंगे, चाहे तेलुगु रिव्यूज़ हो, हिंदी डब वाले हो। तो अब वो हाइप क्रिएट 5 बजे के शाम से पता चलेगा कि हाइप वहाँ पे लेके जाने वाली है या फिर नीचे आएगी। ये सब मैटर करता है, क्योंकि ट्रेलर को ओके टाइप रिस्पांस मिला था, बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस नहीं था ट्रेलर को, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, जो सच है वो सच है, एवरेज सा रिस्पांस था। अखंड 1 से जो कंपैरिजन की गई थी उसमें ये फिल्म कम से कम ट्रेलर में वो लेवल पे नहीं पहुंची थी। बट हाँ, फिल्म अलग होती है, ट्रेलर अलग होता है। होप फॉर द बेस्ट। आपको क्या लगता है, NBK का जादू चलेगा या नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मेरा ये मानना है, अगर इनके फैंस भी सपोर्ट कर लेना, हेटर्स को छोड़ो रे, तो भी ये 200 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस तो जानी ही चाहिए, और हिट का टैग लेना ही चाहिए इसने। तो मुझे जो लगता है पर्टिकुलरली, अब कुछ लोग बोल रहे 100 करोड़ का, नहीं भाई, मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म ऑफ NBK बोला गया है, और उनकी बहुत सी फिल्मों का बजट 100 करोड़ है ऑलरेडी। तुम कैसे बोल सकते हो कि ये मोस्ट एक्सपेंसिव, फिर 100 करोड़ ही बजट है। बट 200 करोड़ लिखा था भाई, एक ऑफिशियल पेज ने भी 200 करोड़ बजट बोला है। बट 200 करोड़ उनके फैंस अगर फुल सपोर्ट करो तो 200 करोड़ मुश्किल नहीं है भाई। क्या लगता है दोस्तों, चलेगी या नहीं?